Dad, that dance with those sticks, what was it? I know. It was Garba with dandiya sticks. I have a feeling that you all enjoyed and learned a lot more about our Indian culture. Ma'am, when will we go to Maharashtra? मुझे वहाँ का वड़ा पाव खाना है. Relax. That is our next station. Maharashtra is famous for its caves and rock out architecture like Ajanta Ellora. It is also famous for its Pathani sari, a special dance form Lavani, and world famous gateway of India. Lavani dance, exciting. Let's see. शिवबाही यहाँ के रगों में बहे, जहाँ पत्थरों ने है लड़ना सीखा, वहीं पत्थरों पे सुकून है लिखा। पर्वतों को यहाँ पानी की सोबतें, कलाकार सारे यहाँ कुदरते, श्रद्धा भरी इन हवाओं में है, शांति मिली मुद्राओं में है। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है, आवारा निकलती हवाएं यहाँ, सफर में जो ढूंढे कहानी मिले। डगर से भले ही बदलते नगर, यहाँ इस मिट्टी की स्टोरी ये हिट है। Romantic, action, emotion, story and drama, music and magic. महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र हिट It was worth exciting. Not only languages, India has a variety of dance forms too. Languages, dance forms, what else do we have in variety which makes India so special?
India is special for its rich culture and heritage. To experience this, let's go to God's own country, that is Kerala. श्यामसुन्दर केरकेदार भूमि जनजीवित फलधान्य सम्पन्न भूमि इद श्यामसुन्दर केरकेदार भूमि मानवक्कु समत നൽകിയ മാവലിതൻ ഭൂമി മധുരമഹിത ലളിത കലകൾ പിരിയും മലർവാടി ശ്യാമസുന്ദര കിരകിരാര ഭൂമി
കാണണം ഗടി തൃശ്ശിവപേരൂര്. നാടിനൊത്ത നടുവില് പച്ചക്കൊട പിടിക്കണ കാട്, വട്ടത്തില് കൂടുവാൻ അവിടെടവുമുണ്ടൊരുപാട്. തേക്കിൻകാട് തേക്കിൻകാടെന്ന് പറഞ്ഞു പോരണ പേര്, കൂടണമെങ്കി കൂടണം ഗടി തൃശ്ശിവപേരൂര്. ഞാനും പോരാ തൃശ്ശിവപേരും പൂരം കാണാൻ. കാന്തേ നീയും പോര് തൃശ്ശിവപേരൂർ പൂരം കാണാൻ. ഞാനും പോരാ തൃശ്ശിവപേരും പൂരം കാണാൻ. കാന്തേ നീയും പോര് തൃശ്ശിവപേരൂർ പൂരം കാണാൻ. Wow, the cultural vibes are still running in me. Geography, tranquil, backwaters floating, houseboats, and a variety of dance fun. It was a scenic fiesta. Indeed, I wasn't feeling like to come back. Wait, dear, we have much more to explore. Much more? Really? I am astonished. So, where are we going now? Okay, wait. Before that, there is a question for you. Tell me, do you know any state which lies in the east but has west in it? Let me think. Yes, I got it. My geography teacher taught me it is West Bengal. Yes, till now you have experienced the natural beauty, culture, languages, and dance forms of our country. Bengali culture is an attraction because of their literature and sweet language. In Bengal, without Rabindra Sangeet is incomplete. So let us hear to the melodious Sangeet and enjoy the world famous Durga Puja. Ooh.
আমার মা সবার মা দুর্গা মা। ঢাকের ঢ্যামকুড়া কুড় বাজছে নূপুর এলো যে পুজোর লগন। মায়ের আলতা পায়ের আলতো ছোঁয়ায় হলো যে অকাল বোধন। তুমি থাকলে পাশে জীবন হাসে, দু চোখে স্বপ্ন ভাসে খুশির সুরে মা। তুমি যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা মা। বলো দুর্গা মাইকে, বলো দুর্গা মাইকে, বলো দুর্গা মাইকে। Wow! It seems that people here are always in festive mood. No, it is not just this. We have India's first underwater metro, Howrah Bridge, and a variety of delicious cuisines. And also they celebrate Durga Puja in ravishing manner. And that is why the state capital Kolkata is known as a city of joy. Wow, what a beautiful attire! This is the first time I am seeing such a different kind of dress. Even I want to try this. Where do we get this from? What is it called? This is Inafi, a traditional dress of Manipur, one of the alluring states in eastern India. Yes, Alice, do you know? We have 7 states in our northeast, and we call them 7 sisters. Correct! Northeast India is one of the most culturally diverse area of the world. Magnificent mountains and hills, amazing rivers, stunning waterfalls, and ample of natural attractions. This is what our Northeast India is all about. Now my geography class will help me out. Let me name the 7 sisters: Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, and Tripura. Excellent! Manipur being famous for its dance form. Let's see the Manipuri Ras Leela dance.
mesmerizing dance. Indeed, I love their costume and dance steps. Now, let us go back from where we started. Okay, so we are going back to the city of lakes. Okay, so Bhopal is our next state? No, dear. Bhopal is the state capital, but I am talking about the heart of India, the Madhya Pradesh. The sculptures of Khajuraho, the quaint hills of Pachmadi, wildlife, temple, carvings and whatnot. So let us have a glimpse of the culture of Madhya Pradesh. सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।
चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। Exotic, even though we are living in Madhya Pradesh, we were unaware of all these interesting places to visit. Such a beautiful experience. This is worth sharing to our friends and family. Now, let's move ahead where we are going to explore more about our Indian culture. Once upon a time, in a small village, people of different religions, castes and cultures lived together. They respected each other's beliefs and ways of life. They celebrated each other's festivals and lived in peace and harmony. सब ठीक है? सब ठीक है? Hey everyone, do you know today is the festival of Eid? Let's go to Abdul Samad Shape. Okay, let's go. आपको ईद की बहुत बहुत बधाई अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ईद मुबारक जी। शुक्रिया जी, आप सबको भी ईद मुबारक हो। However, as the time passed, people started becoming intolerant and insensitive towards each other. The differences that were once accepted and celebrated became the reason for conflicts and discrimination.
We are not feeling good anymore. Our parents keep on fighting with each other and they are not allowing us to play or celebrate with each other. Please find out some solution. Yes, we need our old village back. Even I feel so. I have a plan. Let's execute it together. Okay. The Sarpanch of the village was a wise man. So he decided to do something about this problem. सुनो 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 गांव के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है। आज सरपंच जी ने 3 बजे दोपहर में सभा रखी है जिसमें सभी को शामिल होना है। The Sarpanch called for a meeting of the villagers to look into the matter as what is happening in the village. What happened, Sarpanch ji? Why you have called for a sudden meeting? There is an important matter to discuss it, which your children have brought up to me. Children are not happy. Us as parents keep on fighting on the basis of differences. Even I also feel there are some differences among us which should not be there. तो इसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं सरपंच जी? Nobody is ready to listen to others and all are not accepting each other. You people do not listen to others and do what suits you. Hey, don't fight. First listen to what Sarpanch ji wants to make us all understand. Sarpanch ji suddenly became unconscious and fell down on the ground. अरे सरपंच जी को क्या हो गया? कोई जल्दी से पानी तो लेकर आओ. All the villagers are worried that what happened to this Sarpanch ji. Some people are giving water. People of different religion come together and started praying for this Sarpanch ji in their own ways. Some people started rubbing hands and feet of Sarpanch ji to make him conscious again. Sarpanch ji came back from unconsciousness and got up. अरे सरपंच जी को होश आ गया. हमारी दुआ और रहमत रंग लाई. I am completely fine. Nothing happened to me. It was just a reality check to show you people as in tough times all came together, leaving all the differences behind for a good cause. So why can't we always live together and united? बात तो आपकी सही है सरपंच जी. तो इस we all lost from the path of unity. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. चलो हम सब फिर
decided that now onwards, no differences will be ever felt. They make a plan that the coming festival will be celebrated with great zeal and enthusiasm with no differences among each other. होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। Merry Christmas. ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤੇ ਆਈ, ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਆਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ। The festival became an annual event, and over the time, the village became the model of unity in diversity. So we conclude by saying that we should share our similarities and celebrate our differences. Thank you. We are very fortunate to have the Honorable Chief Guest, Mrs. Disha Nagvanshi ma'am, with us. She is a woman of principles and a symbol of honesty. I now request the Honorable Chief Guest to kindly come over the dais to show her blessings with her words of wisdom. Let's welcome her with a huge round of applause. Ma'am, please come upon the stage. सेंट मोंटफोर्ट के आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सम्मानीय ब्रदर एलेक्स, सम्मानीय ब्रदर मोंचैन, स्कूल प्रबंधन, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे मालूम है कि चीफ गेस्ट को कोई सुनना नहीं चाहता। एक तो इतना बेहतरीन प्रोग्राम कि आपको कुछ घंटों में समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कि आप किसी अलग दुनिया में हैं।
और उस अलग दुनिया से एकदम से आपको बोला जाए कि नहीं नहीं अब चीफ गेस्ट को सुनना है, तो किसी में इतना पेशेंस होता नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे 5 मिनट सुनेंगे तो इस चीज़ का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले जब हम बच्चों को देख रहे थे, और आप सबने भी ध्यान दिया होगा कि जब हम इन बच्चों को देख रहे थे, इनका डांस देख रहे थे, इनको हम परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, तो बरबस हमारे चेहरों पर एक मुस्कान बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? आपने कभी सोचा है कि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, कई बार इनके जो परफॉर्मेंसेस में होता है कि कई बार सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, किसी का हाथ इधर जा रहा है, छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, लेकिन हम भरपूर एंजॉय करते हैं इनको देखना, इसलिए क्योंकि एकदम मासूम बच्चे हैं ये। इनके दिल में मासूमियत है, चेहरे पर मासूमियत है, बिल्कुल साफ दिल के हैं ये लोग। दिल में कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्लैंक स्लेट है, वैसे होते हैं ये बच्चे। तो जब हम इनको देखते हैं तो हमारे चेहरे पर एक बरबस मुस्कान बनी होती है। तो हमको बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए, और मुझे लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं। मैं अभी भी सीखती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे अभी भी सीखती हूँ। जब मुझे कहीं मोबाइल में कोई टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं तो मैं बोलती हूँ अरे देखो। तो ये बहुत बच्चे हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हम एज अ पेरेंट कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इनके साथ में। हम इनके ऊपर अपनी इच्छाओं को लाद देते हैं, अपने एस्पिरेशंस को लाद देते हैं कि अरे हम वो नहीं कर पाए तो हमारा बच्चा ये करे। मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैं एक अच्छा डांसर बनूं, या मैं किसी एक पोस्ट पे जाऊं, या मैं कहीं ऐसा सक्सेसफुल इंसान बनूं, और जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी सारी अपेक्षाएं अपने बच्चों से लाद देते हैं, जो हम बहुत गलत करते हैं। उनको खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, ये उनकी उम्र है, उन्हें ग्रो करने दीजिए, उन्हें खुद समझने दीजिए, उनको खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप उनको फैसिलिटेट कीजिए एज अ पेरेंट। आप उनको बता सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन उनको अपना रास्ता खुद चुनने दीजिए। मुझे लगता है कि इससे बेहतर हमारा रोल उनकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। मुझसे एक बार मेरे बच्चों ने बहुत पहले पूछा था कि हम बड़े होकर क्या बने, आप चाहते हो कि हम IAS बने? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले हम क्या बने? मैंने कहा जो तुम बनना चाहते हो, तुम कुछ बनो ना बनो पर एक अच्छा इंसान बनो, ये मेरी दिली तमन्ना है, और इतना ही एक्सपेक्टेशन मुझे तुमसे है। आगे फिर तुम्हारा रास्ता है, तुम जो तय करना चाहो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं तुमसे कहूँगी कि अपने किसी भी, आप जो भी अपना एम बनाते हो, चाहे तुम किसी भी पोस्ट को एक्वायर करना चाहो, या तुम सिंगर बनना चाहो, तुम डांसर बनना चाहो, तुम बिजनेस करना चाहो, और कुछ नहीं करना चाहो, तुम होम मेकर ही बनना चाहो। ज़रूरी नहीं है कि लड़का नौकरी करे या लड़की नौकरी करे, होम मेकर भी बनना चाहो तो मैं उसमें भी बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना कि उसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूर एक्वायर करना, ताकि कल तुमसे कोई ये नहीं कह सके कि तुम ये नहीं बन पाए क्योंकि तुम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे, तुम्हारे पास उसके लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी या प्रोफेशनल योग्यता नहीं थी। आप उसके लायक बनिए, काबिल बनिए, और उसके बाद डिसाइड करिए मुझे क्या करना है। तुम्हें नहीं करना है जॉब, बिल्कुल मत करो, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। तो मेरा यहाँ के जो यहाँ उपस्थित हैं पेरेंट्स, उन सब से यही दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को खुला आसमान दीजिए, उड़ने दीजिए, और उनको सही गलत ज़रूर सिखाइए, उनको पढ़ने दीजिए, मतलब उनको बुक्स पढ़ना सिखाइए। जब वो बुक्स पढ़ेंगे तो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सी चीज़ें हमें किताबें पढ़ने से आती है। अब मेरे बच्चे पढ़ने लगे हैं, मेरे बच्चे अब 7th और 9th में हैं, लेकिन जब छोटे थे, आई थिंक क्लास 4th में थे, तब से मैंने उनको आदत डाली हुई है कि वो किताबें पढ़ें। पहले कॉमिक्स से शुरुआत की और अब खुद पढ़ने लगे हैं। आप ताज्जुब मानेंगे कि अभी बीच में मेरी बिटिया का बर्थडे था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। उसने मुझसे कहा कि मुझे एक बुक चाहिए जो मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाह रही हूँ। मैंने कहा बुक तो मैं तुम्हें दिला दूँगी,
दैट वाज हार्डली 150 रुपीज़ की किताब थी। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जो मैं उसे नहीं दिला सकती। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको ये किताब दिला देती हूँ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक बुक चाहिए था, आप मुझे बस उतना ही दिला दो, दैट इज़ माई बर्थडे गिफ्ट। आपने कपड़े दिलाई दिए, पार्टी आप दे ही रहे हो, मेरे फ्रेंड्स को हो गया। ऐसा नहीं, कुछ और ले लो, मेरी तरफ से ले लो, पापा की तरफ से ले लो, दादा दादी की तरफ से ले लो। शी सेड मुझे नहीं चाहिए मम्मा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एंड यकीन मानिए, आई वॉज द हैप्पीएस्ट मदर ऑन दैट डे कि मेरी डॉटर को आज समझ में आ गया है कि उसको उसकी बेसिक नीड क्या है, उसको डिफाइन करना आ गया है कि मेरे को संतुष्टि कहाँ मिलेगी। मतलब मैं कई चीज़ों के पीछे भागूं नहीं, मुझे कहाँ पर पता है कि मुझे क्या चाहिए और कहाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हो सकती हूँ। तो हमें ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आप जब अपने काम पर जाते हैं, कभी अपने बच्चों को लेकर जाइए साथ में, उनको बताइए कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। हम एज अ पेरेंट हम जानते हैं कि हमारी जनरेशन ऐसी थी जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई कैन प्राउडली से दैट। और हमें पता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। मतलब हमारे पेरेंट्स बहुत ईजिली हमें चीज़ें नहीं देते थे। मैं अपने बच्चों को अगर एक पेन मांगेगा तो मैं शायद 12 पेन ला के रख देती हूँ कि यार मुझे बार बार परेशान मत करना, तुम अपने हिसाब से ले लेना। लेकिन जब मैं जब पढ़ती थी तो अगर मुझे एक पेन की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो एक पेन जब ख़त्म होने वाला होता था तब शायद दूसरा पेन आता था घर में। लेकिन अब हम मैं अगर खुद की बात करूँ तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय बच्चों को नहीं दे पाती हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों के साथ हूँ तो मैं उनको क्वालिटी टाइम दूँ। मतलब जितना समय मैं उनके साथ हूँ मैं उतना समय उनसे बातचीत करूँ, उनके साथ समय बिताऊँ और जानूँ कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। हमें लगता है कि यार छोटे बच्चे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस है, क्या चल रहा होगा। कुछ नहीं, सब तो दिया हुआ है हमने। आते हैं, स्कूल से आते हैं, अपना मन मुताबिक कार्टून लगा लेते हैं, देख लेते हैं, खेलने चले जाते हैं। उनकी लाइफ में क्या स्ट्रेस होगा। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा अप्लाइड साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन है। आई कैन से कि छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। आप उनसे पूछिए, उनके लिए स्ट्रेस हो सकता है कि यार आज मेरे फ्रेंड ने मुझसे बात ही नहीं की, आज मेरी सहेली दूसरे के साथ जाके बैठ गई। हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो पूरी दुनिया का एक पार्ट हो सकता है। उसका वर्ल्ड है वो रोटेट कर रहा है उसके दोस्तों के इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द। उससे पूछिए, अच्छा क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम ऐसे बिहेव, अच्छा तुम्हारी सहेली ने बात नहीं की, क्यों नहीं की, उससे जाके पूछो भाई क्यों नहीं की, तुमसे किस बात पे नाराज है। तो आप अपने बच्चों से निरंतर बातचीत करते रहिए, क्योंकि आप जब बातचीत करते रहेंगे बच्चे आपसे खुलकर अपनी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। और तब आपको ये शिकायत तब नहीं होगी जब बच्चे आपके टीनेज में जाएंगे। टीनेज में भी आके बच्चे आपसे खुलकर हर चीज़ बताएंगे। और अगर अभी हम नहीं बात करेंगे तो बच्चे तब टीनेज में अपनी दुनिया में गुम हो जाएंगे। और तब हम कहेंगे कि अरे ये तो नई जनरेशन है, ये तो अपने में ही गुम रहती है, मोबाइल में खोई रहती है, लैपटॉप में खोई रहती है, हमारे लिए समय ही नहीं है। तो ये शिकायतें अगर आपको तब दूर करनी है तो अभी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसा मैंने कहा कि आप उनको अपनी वर्क प्लेस पर भी लेकर जाइए। मैं अपने ऑफिस लेकर गई थी बच्चों को, उन्हें बताया कि मैं क्या काम करती हूँ, उन्हें पता नहीं था। और जब बहुत छोटे थे तो एक बार घर आए और बोलते मम्मी कुछ काम नहीं करती है ऑफिस में, बस बैठी रहती है और घंटी बजाती है, फिर वो प्यून अंकल आते हैं, वो फाइल्स रख जाते हैं, मम्मी साइन करती है, फिर वो फाइल्स वापस दे देती है। मम्मी ऐसा स्पेसिफिक काम ज़्यादा नहीं करती, आराम से काम करती है। देन माई बॉस टोल्ड देम, मेरी बॉस ने उनको बुलाया और शी सेड तुम्हें पता है मम्मा जो काम करती है वो फाइल पढ़ने में कितनी मेहनत होती है, उस फाइल को पढ़ना समझना, और उसमें जरा भी मिस्टेक हो गई तो फिर क्या मुसीबत हो सकती है। एंड देन दे रियलाइज्ड, फिर बहुत बाद में जब मेरे बच्चे बड़े हुए देन आई टोल्ड देम कि ये काम हम करते हैं, दिस इज़ हाउ द लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेट्स। लॉ एंड ऑर्डर में तो हमारी जान भी जा सकती है बट स्टिल वी हैव टू बी देयर, क्योंकि हमें लीड करना है हमारे ग्रुप को। अगर हमने लीड नहीं किया तो हमारे पीछे वाले सारे भाग जाएंगे और क्राउड कहाँ जाएगा हमें नहीं पता।
फिर हमारे साथ क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, हम वन पीस में वापस भी आएंगे कि ये भी नहीं पता, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देन दे रियलाइज्ड, धीरे धीरे कि उनको वैल्यू समझ में आई कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं। आप जब बच्चों को अपने काम पर लेकर जाएंगे, आप चाहे बिजनेस पर्सन हो या आप ऑफिस में हो, इवन अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो उन्हें समझाइए कि किचन में काम करना भी कितनी मेहनत का काम है। आटा गूंदना, रोटी बनाना, लोगों को खाना खिलाना कितना मेहनत का काम है। उनको मेहनत का आप अगर समझाएंगे कि मेहनत की कीमत क्या होती है, तो मेरे ख्याल से बच्चे आपके बहुत अच्छे निकलेंगे आगे जीवन में। लाइक मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, आई एम सॉरी मैं अपने एग्जाम्पल्स बहुत दे रही हूँ बिकॉज मेरी लाइफ ऐसी ही है, मतलब आई कांट बी मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रीच नहीं कर सकती हूँ और ना मैं ऐसे कोई, मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ क्योंकि वो मैंने किया हुआ है और मैं शायद सक्सेसफुल भी रही हूँ काफ़ी हद तक। कि मेरे बच्चे जब मॉल में जाते थे कोई गिफ्ट खरीदने, तो मैं उनसे, वो मुझसे पलटते हैं पीछे कि ये कितने का है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता कि कितने का है, इसका क्या मायने होगा। देन आई यूज्ड टू टेल देम कि बेटा ये इतने का है, जितना सैलरी हमारे घर में जो आंटी झाड़ू पोछा करती है पूरे मंथ में, उतनी सैलरी उनको हम महीने में देते हैं, उतने का ये तुम्हारा टॉय है, क्या तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो? देन दे वुड से, मतलब पूरे महीने? मैंने कहा हाँ पूरे महीने भाई, मतलब रोज वो आएंगी, पूरा झाड़ू करेंगी, पोछा करेंगी, कितनी मेहनत लगेगी, तो उतना अमाउंट का ये तुम्हारा टॉय है, कैन यू अफोर्ड इट? तो फिर हमको भी झाड़ू पोछा करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तुमको भाई तुम जो कर सकते हो वो करो। दे सेड क्या? मैंने कहा अच्छे से पढ़ाई करो, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, बिकॉज इसी में तुम एक्सेल कर सकते हो। पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे व्यक्ति बनो, झूठ मत बोलो, मुझसे आके चीज़ें शेयर करो, किसी से बदतमीजी से बात मत करो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, लोगों की मदद करो, देन यू कैन अफोर्ड दिस टॉय। सो ग्रेजुअली उनको समझ में आया कि मेहनत की कदर कैसे की जानी है, और अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा और कैसा होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम सब एज अ पेरेंट अपनी ये लायबिलिटी समझ लें, क्योंकि अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं और आगे भविष्य का निर्माण इन्हीं बच्चों को करना है, और आगे भविष्य हमारे हाथों में, हम कहते हैं बच्चों के हाथों में नहीं, हमारे हाथों में है एज अ पेरेंट, क्योंकि हम जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे निकलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें और भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बने, देखिए पोस्ट कोई भी पा सकता है, IAS कोई भी बन सकता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, आप बन जाएंगे। आप बस आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेके, टाइम आपको सेट करना पड़ेगा हर चीज़ का, लेकिन अच्छा व्यक्ति होना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपकी कदर सभी जगह होगी, वरना आप जब तक पोस्ट पे हैं तब तक लोग कदर करेंगे, आप एक दिन पोस्ट से चले जाएंगे फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो एज अ रोल मॉडल मैं है एज अ IAS आपको नहीं बिल्कुल पोर्ट्रे करूंगी कि नहीं आप बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेजिए, बिल्कुल भेजिए, आपकी दिली तमन्ना है, भेजना चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए कि भाई एक मुझे लगता है इस पोस्ट में आने के बाद शायद मैं अंतिम छोर के व्यक्ति तक मदद पहुंचा सकती हूँ। मुझे कम से कम इतना सरकार मुझे एम्पावर कर देती है, लेकिन उसके साथ एक अच्छा व्यक्ति होना कि आप उस मदद को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने की मंशा रखें, यह बहुत बड़ी चीज़ है। और ये हमें अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है कि वो जीवन में अच्छा काम करें, अच्छे व्यक्ति बने, ताकि आपको उन पर गर्व हो। धन्यवाद। Ma'am, please wait. Thank you, ma'am, for your golden words. It's an honor to hear from you. Now I request our principal, Reverend Brother Monachan KK, to kindly come upon the stage to present the token of love and gratitude in the form of memento to our chief guest, Mrs. Disha Nagvanshi ma'am.
you.